Good morning, students. In a theory of computation subject, unit number 2, regular languages and a finite automata. So in this session, we will discuss about the extended transition function theta star for the finite automata and a union operation, intersection operation and a complement operation. So let's start. The first one is a extended transition function theta star for a finite automata. Now let's see what is extended transition function. So the machine M is equal to the Q sigma Q node A and theta B and finite automata. As we know, the finite automata is a collection of five tuples. So we define the function that the extended transition function theta star is equal to q cross sigma star. Okay, so it will become give us a q. It means the set of element or a set of string. It's and as we know the q is a collection, right? So is a follow. So for any q, it means for any state which is a q which belongs to the finite set of collection q, that this extended transition function theta star of the q comma what we say the intersection will give us a q itself. It means if we perform the extended transition function on any state of a Q with the null value, or we can say the intersection, then we will get the Q. Here it's not a intersection, but we can consider this one as a null function. Okay, and the second condition of an extended transition function is that so for the any q which belongs to the capital Q and the y which belongs to the sigma star and the element a which belongs to the set of alphabet, it means the sigma, at that time the extended transition function theta star of a state q and the input is a y and a. So for that the extended transition function is equal to theta of theta star q comma y और a बाहर निकल जाए. इट मीन्स कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है कि जो भी यहाँ पे हमें इनपुट सिंबल y एंड a दोनों दिए हैं, अगर हम इस पे जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, सो फॉर दैट ये q हमारा एक स्टेट है, एक नोड है, राइट, फाइनाइट ऑटोमेटा का. तो जब भी हम इस पे ट्रांजिशन फंक्शन एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें इनर से लेके, इट मींस इनर वे से हमें उसको सॉल्व करते जाना है कि जैसे कि q ऑफ y ऑफ a है तो a हमारा बाहर निकल जाएगा और हम सबसे पहले ट्रांजिशन फंक्शन किसका फाइंड करेंगे, तो थीटा स्टार ऑफ q कोमा y का करेंगे और a बाहर निकल जाएगा. उसके बाद हम दिस एक्सटेंडेड ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है ये वाला, राइट, इसको हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. द सेम वे हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और जो भी आंसर मिलता जाएगा उसको हम वहां पे पुट करते जाएंगे. और जब हम करते जाएंगे एट दैट टाइम लास्ट में हमें क्या मिलेगा, तो कि टोटल कितने स्टेट्स हैं उसका जो फाइनल आंसर है कि कौन सा स्टेट किसको बिलोंग करता है वो हमें फाइनल आउटपुट में मिलेगा. लेट्स सी एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है कि जहां स्टार्टिंग नोड कौन सा है, क्यू नोड है और इनपुट सिंबल है ए. अगर क्यू
स्टार्टिंग सिंबल में अगर ए एज ए इनपुट आता है तो वो जाएगा Q1 स्टेट में। अगर Q1 स्टेट में आंसर सॉरी इनपुट सिंबल जो है वो बी आता है तो वो जाएगा Q2 स्टेट में, और लास्ट में जब C एज एन इनपुट आएगा तो वो Q3 स्टेट में जाएगा, विच इज अ फाइनल स्टेट। तो ये एक सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा है। अभी हमें क्या करना है कि इसका हम कैलकुलेट करेंगे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। So the extended transition function theta star of the Q, it means the total numbers of state कितने होंगे, ये क्या दिखाता है, the number of state कि क्या है, ठीक है। It means ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ये थर्ड वन है, ये फोर्थ वन है। तो अभी हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हमें एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से करेंगे। सो द एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन of a Q, input symbol A, B, C. तो as we know हमारे पास दो कंडीशन है जिसका यूज करके हमें एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करना है। इट मींस कि अगर हमें एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ नोड Q कोमा नल का फाइंड करना है तो वी विल गेट द Q as it is. But if we want to perform the extended transition function on a y of A, y and A, then the answer we will get is a transition function of extended transition function Q comma y comma A। तो सबसे पहले हम extended transition function अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो थीटा ऑफ A इसका जो आंसर मिलेगा वो नेक्स्ट स्टेट में जाएगा A के लिए। तो किस तरह से होगा चलो देखते हैं। सो द एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन फॉर द Q नोड for the Q node A, B and C, अगर यहाँ पे अभी नल नहीं है, यहाँ पे क्या है A, B और C है, तो क्या होगा कि C हमारा बाहर निकलेगा। इट मींस C का हम क्या करेंगे, द ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करेंगे उस पे, और A, B पे हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो एज पर दिस सेकंड रूल जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो होगा कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन for the Q of A, B and C, we will get the theta of theta star Q, A, B, C। चलो इसको हम फर्दर और एक्सटेंड करते हैं। किस तरह से कि अभी यहाँ पे देखो ये थीटा स्टार ऑफ Q, A, B है, तो ये वाला सेकंड रूल फिर से अप्लाई होगा। तो इस पे हम अगर फर्दर इसको अप्लाई करते हैं तो अभी क्या होगा कि थीटा ऑफ थीटा in bracket the theta star Q of A comma B and C। चलो यहां तक का हो गया। अभी क्या करना है हमें, ये जो थीटा स्टार है Q of A इस पे भी ये सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा। तो अगर यहाँ पे अभी देखो सेकंड रूल अप्लाई करते हैं तो पहले Y एंड A बोथ थे तो A वाला हम कॉमन बाहर निकाल रहे थे और Y पे हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई कर रहे थे। बट अभी यहाँ पे A बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, तो नल बचेगा। तो फॉर दैट वी विल गेट द नल ऑफ ए। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि थीटा ऑफ थीटा इन ब्रैकेट द एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन थीटा स्टार फॉर द क्यू कोमा नल ऑफ ए। इट मींस कि अगर ए नहीं होगा तो नल होगा, तो वी विल गेट ए एज इट इज। इट मींस कि जो भी स्टेट है वो हमें एज इट इज मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि जैसे ही हमने ए को बाहर निकाला तो इन ब्रैकेट क्या बचा, नल बचा। तो फॉर दैट पर्टिकुलर नल अभी ये जो रेड हाईलाइट है वो हमारे कहीं ना कहीं पे थीटा स्टार ये फर्स्ट वाली कंडीशन है उससे मैच हो रहा है, तो हमें क्यू नोड एज इट इज मिलेगा। सो फॉर दैट हमें क्या मिलेगा कि वी विल गेट द क्यू कोमा ए। ठीक है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर थीटा ऑफ, यहाँ पे हमने एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को अप्लाई किया तो हमें क्यू नोट एज इट इज मिला। तो इसकी जगह पे हम क्यू ऑफ ए लिख सकते हैं। सो द ट्रांजिशन फंक्शन फॉर द क्यू ऑफ ए व्हाट वी विल गेट कि फॉर द नोड क्यू ए कहाँ पे, अभी देखो कंसीडर करते हैं जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है, तो क्यू से अगर हम ए जो इनपुट है उसके लिए अगर हम ट्रावर्स करते हैं तो Q से हम कहाँ पे जाते हैं, Q1 में जाते हैं। तो फॉर दिस थीटा ऑफ Q कोमा A वी विल गेट द Q1 और Q1 उसके बाद आता है B।
तो Q1 ऑफ B के लिए हम अगर ट्रावर्स करते हैं तो हम जा रहे हैं Q2 नोड में। सो थीटा ऑफ Q2 कोमा C जो हमें फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद फॉर द थीटा ऑफ Q2 कोमा C के लिए हम कहाँ पे ट्रावर्स कर रहे हैं? Q3 में। सो फाइनल आंसर हमें मिलेगा Q3 विच इज आवर फाइनल स्टेट। और यहाँ पे जाके हमें हमारा फाइनल जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन था वो हमें मिल गया कि Q3 नोड पे जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है वो इनपुट एलिमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई करके भी फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन स्ट्रिंग ए बी एंड सी फाइनल स्टेट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इट मींस इट विल एक्सेप्ट द स्ट्रिंग और नॉट, हम वो चेक कर सकते हैं। तो ये था एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन थीटा स्टार। ओके, एंड दिस इज द एक्सरसाइज कि जो आपको परफॉर्म करनी है फॉर द प्रैक्टिस, राइट। तो इस पे आप थीटा स्टार क्यू कोमा एक्स और वाई अप्लाई करके आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो आपको चेक करना है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस ऑफ बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। इट मींस कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया गया है, लेट द मशीन एम इज इक्वल टू द क्यू सिग्मा क्यू नोड ए एंड थीटा बी एन फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। और एक स्ट्रिंग दी गई है x which belongs to the finite set of string sigma star is accepted by the machine। वो किस कौन एक्सेप्ट करेगा? मशीन m, इट मींस जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। कब? कि जब हम उसका एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन फॉर द क्यू नोड कोमा x फाइंड करेंगे and it will belongs to the A which is a final state, then and then it will accept the string. And if the string is not accepted, we can say that it is rejected by the machine M. And this language accepted by the machine or the language recognized by the machine is the set where we can write that कि language of a machine is equal to the element x which belongs, it means the element or a set of element x which belongs to the set of string, finite set of string sigma star where the x is accepted by the machine। it means कि अगर machine जो set of string x हमने input दी है उसको accept करता है, so for that we can say that the x belongs to the sigma star where the x is accepted by the machine। And if the language L is any language over the set of alphabet sigma and L is accepted or recognized by the machine if and only if the L is equal to L of M। it means कि अगर हमें इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कि कोई भी लैंग्वेज दी गई है फॉर द पर्टिकुलर सिग्मा, इट मींस द सेट ऑफ अल्फाबेट के लिए कोई भी लैंग्वेज दी गई है, कोई भी लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन हमने डिजाइन किया है, तो वो तभी एक्सेप्ट होगा बाय द मशीन एम, इट मींस बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा, कि जब एल जो है इट मींस जो लैंग्वेज है वो इक्वल टू हो एल ऑफ एम, कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा द लैंग्वेज फॉर द फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट करता हो, तभी ना तभी हम कह सकते हैं कि यस द लैंग्वेज एल इज एक्सेप्टेड बाय द और रिकॉग्नाइज्ड बाय द मशीन एम। और इसको सिंबॉलिकली हम कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि जहां पे स्टार्टिंग सिंबल से ही जो भी इनपुट एलिमेंट्स हो वो रिपीटेडली आएंगे और वो एक्सेप्ट होते जाएंगे। then and then we can say that the language is accepted by the machine M। okay, hold a minute। okay, so now we will discuss a union operation, intersection operation and a complement operation on a language। okay, so suppose that the machine 1 is a given and a machine 2 is also given, and for that which accept the language L1 and L2 respectively, it means the machine M1 can accept the language L2 and machine 2 accept the language L2,
and the M, which is being a finite automata, which is defined by the machine M, is equal to the definition of a finite automata, Q sigma Q node A and a theta, where the Q is equal to, it means the M1 और M2 दोनों मशीन दी गई है, तो अगर हमें Q फाइंड करना है, then we can perform the multiplication on a Q1 and a Q2. For that, what is the Q node? So the Q node is a Q1 comma Q2, कि जहाँ पे दोनों में से जो भी स्टेट है वो एक्सेप्ट करेगा. It means the starting symbol Q node, it means the starting state of a finite automata. So for the both machine M1 and for the M2, the starting symbol is a Q1 comma Q2. It means the Q1 for the M1 and Q2 for the M2. And if we multiply, it means we combining both M1 and M2. At that time, for the machine M, we will get the starting symbol. It's a Q1 and a Q2. So, and the transition function theta is defined by the formula that, so the transition function for a P comma Q for the symbol A, it means the state P and a state Q, which are respectively belonging to the machine M and the machine 2, M2, and the input symbol for the A, we can say that the transition function is that, so the theta 1 is for the P comma A, P of A, and the theta 2 is equal to the Q comma A. तो ये हो गया ट्रांजेक्शन फंक्शन. कि ट्रांजेक्शन किस तरह से होगा? So for the any the P which is belong to the Q1 and any symbol Q which belongs to the Q2 and the A which is belonging to the set of alphabet sigma, then we can say that if the A is equal to the P comma Q, where the P belongs to the A1 or a Q belongs to the A2, at that time we can say that the machine accept the language L1 union L2. It means कि जो स्टेट है P एंड स्टेट Q है, कि जहाँ पे स्टेट 1 जो है वो A1 को बिलोंग करता है, इट मींस मशीन 1 को बिलोंग करता है, और Q जो स्टेट है वो A2 से बिलोंग करता है. फॉर दैट वी कैन से दैट कि मशीन जो है वो L1 और L2 का जो हम यूनियन परफॉर्म करेंगे तो वो भी वो एक्सेप्ट करेगा. इट मींस कि अगर हम यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दोनों मशीन पे, लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज है कि जो रिस्पेक्टिवली M1 एंड M2 मशीन एक्सेप्ट कर रही है, तो अगर हम L1 और L2 का यूनियन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन होगा वो फाइनाइट ऑटोमेटा उसका यूनियन भी एक्सेप्ट करेगा. एंड द सेम वे द रेस्ट ऑफ द थिंग इज दैट कि इंटरसेक्शन एंड अ कॉम्प्लीमेंट भी एक्सेप्ट करेगा. कब? कि इफ the final state A is equal to the state P comma state Q, where the P belongs to A1 and Q belongs to L2, so that the machine can accept also the L1 intersection with the L2. And the third thing is that if the acceptance of A is equal to, or we can say that the final state A is equal to the node P and a node Q, state P and a state Q, where the P belongs to A1 but the Q not belongs to the A2. So for that we can perform the L1 minus L2, which is a complement. It means कि respectively M1 and M2 दोनों machine फाइनाइट ऑटोमेटा दो है, और जो रिस्पेक्टिवली L1 लैंग्वेज और L2 लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है. एंड फॉर दैट अगर एक मशीन हम डिफाइन करते हैं दोनों का कंबाइन करके, तो वो मशीन उसका यूनियन, उसका इंटरसेक्शन और उसका कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों ऑपरेशन को भी एक्सेप्ट करेगा. तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो तीनों का इंटरसेक्शन होगा तो भी एक्सेप्ट होगा, यूनियन होगा तो भी होगा, और कॉम्प्लीमेंट होगा तो भी एक्सेप्ट होगा. चलो
विद द एग्जांपल हम देखते हैं कि सबसे पहले दो लैंग्वेज दी गई है, सो फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ द फाइनाइट ऑटोमेटा, कि यहाँ पे L1 लैंग्वेज है कि जो x एलिमेंट को एक्सेप्ट करता है, कि जहां पे जो x है वो क्या है कि 00 is a not a substring of a x and x belongs to the 0,1 star. It means कि सबसे पहले लैंग्वेज के लिए हमें फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है कि जो ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे कि जहां पे 00 सब स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। सब स्ट्रिंग मीन्स कि इन बिटवीन कहीं पे भी 00 आना नहीं चाहिए और 00 एज अ सब स्ट्रिंग होनी चाहिए नहीं। बट रेस्ट ऑफ द थिंग इज दैट कि वो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और विद द स्टार। स्टार का मीनिंग क्या है, एज यू ऑल नो कि 0 और मोर, राइट। सो फॉर दैट, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहली लैंग्वेज में 00 सबस्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करे वो 00 को सबस्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता होना चाहिए। और रेस्ट ऑफ द थिंग की बात यह है कि वो कि जो स्ट्रिंग डिजाइन होगी वो कैसी होगी, जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसा होगा कि वो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा। बट कैसा, इट मीन्स द स्टार, इट मीन्स द 0 और अ मोर टाइप। आइदर यू कैन do not write anything or you can combine the 0 and a 1. The same thing for the L2 कि जहां पे x है जो end with 0 1 से end होना चाहिए। ओके, आगे कितने भी 0 और 1 की कॉम्बिनेशन वाली स्ट्रिंग हो डजंट मैटर, बट एट द लास्ट क्या होना चाहिए, 0 एंड 1 से वो एंड होनी चाहिए। So for that the L1 and the L2 we have to draw the finite automata for the union, for the intersection and for the complement. तो सबसे पहला टास्क क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो L1 के लिए M1 डिजाइन करना है, L2 के लिए M2 डिजाइन करना है। इट मींस फॉर द लैंग्वेज 1 के लिए जो भी लैंग्वेज हो उसको एक्सेप्ट करते एक फाइनाइट ऑटोमेटा को हमें ड्रॉ करना है, और L2 को एक्सेप्ट करे उसके लिए भी हमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है। सो फॉर द M1 की जहां पे 00 सब स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। सो फॉर दैट द फाइनाइट ऑटोमेटा M1 कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा कि जहां पे अगर देखो कि C को फाइनल स्टेट नहीं डिजाइन किया है, क्यों, क्योंकि अगर A से 0 आ रहा है तो वो B में जाएगा, और B से फिर से 0 की स्ट्रिंग है तो वो C में चला जाएगा, और अगर C फाइनल स्टेट है तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। सो वो हमें नहीं करना है, यहाँ पे हमें कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी नहीं है। क्यों, क्योंकि इन बिटवीन भी कहीं पे भी 0 और 0 आ गया और रेस्ट ऑफ द थिंग लास्ट में ये 0 और 1 कितने भी टाइम्स हो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर 0 0 आ गई और यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई तो ये नहीं चलेगा फाइनाइट ऑटोमेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर यहाँ से 0 आया और 0 से फिर से 1 इनपुट आया तो 0 0 कहीं पे भी एक्सेप्ट कहीं पे भी आएगी नहीं, क्योंकि ये 0 1 टाइम ही आएगा। तो कंटिन्यूअसली 2 टाइम 0 नहीं आने चाहिए। इट मींस कि 0 0 इन बिटवीन सब स्ट्रिंग होनी नहीं चाहिए। अगर सिर्फ 1 दिया है और एक्सेप्ट हो जा रहा है इट इज ओके। सिर्फ इनपुट 0 है तो वो बी में एक्सेप्ट हो जाएगा। 0 एंड 1 है तो ये यहाँ से 0 में जाएगा और 0 से यहाँ पे आके 1 में वो एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। बट अगर 0 1 0 1 1 1 है तो ये 0 से यहाँ जाएगा, 1 में यहाँ आएगा, फिर से 1 और फिर से 1, तो वो स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी कि जहां पे 0 0 सब स्ट्रिंग नहीं आ रही है। एंड सेकंड की 0 एंड 1 वो से एंड होनी चाहिए। इट मींस कि 0 और 1 हम जब भी इनपुट दें तो वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, एंड होना चाहिए 0 एंड 1 से। ओके, स्टार्टिंग में एनी नंबर्स ऑफ टाइम 1 आते हो, एनी नंबर्स ऑफ टाइम 0 आते हो, डजंट मैटर, बट द थिंग इज दैट कि 0 एंड 1 से वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। सो यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल P है, सबसे पहला इनपुट हम 0 देंगे, 0 के बाद ये 1 आएगा तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगी।
यहाँ पे अगर फिर से 0 1 उसके बाद फिर से 0 1 आ रहा है, सो फॉर दैट व्हाट, सो 0 और यहाँ से 1 लेगा, ये फिर से 0 आएगा और फिर से यहाँ पे 1 लगाए तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। 0 0 0 1 हो तो क्या होगा, तो कि यहाँ से 0, ये 0 और फिर से 0 और उसके बाद ये वाला 1 तो भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, सो M2 और M1 और M2 यहाँ पे हमारे पास दो है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमें कंप्यूट करना है L1 यूनियन L2, L1 इंटरसेक्ट L2 एंड L1 माइनस L2, इट मींस टू कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले Q1 के अंदर क्या है, हमारे पास तीन स्टेट है, कैपिटल A B और C। Q2 के पास भी हमारे पास तीन स्टेट है, P Q एंड R। सो द Q इज इक्वल टू Q क्रॉस Q2 इज इक्वल टू, दोनों का क्रॉस परफॉर्म करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ए पी ए क्यू ए आर, बी पी बी क्यू और बी आर, सी पी सी क्यू एंड सी आर। तो ये हमने सबसे पहले दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। तो उस क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हम उसके जो स्टेट है वो डिजाइन कर देंगे, जो नोड है वो डिजाइन कर देंगे। उसके बाद सबसे पहला क्या आता है, तो Q0 आता है। सो फॉर द स्टार्टिंग सिंबल कहां से करेंगे, तो कि Q1 एंड Q2 से। सो Q1 एंड Q2 क्या है, Q1 के सबसे पहला स्टार्टिंग सिंबल है A एंड फॉर द Q2 स्टार्टिंग सिंबल है P। सो A और P दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, A और P, तो AP हमारा यहाँ पे रहेगा स्टार्टिंग सिंबल और स्टार्टिंग नोड फॉर द फाइनाइट ऑटोमेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी द ट्रांजिशन फंक्शन हम इस पे अप्लाई करेंगे। सो फॉर दैट द थीटा ऑफ A कोमा P, सबसे पहली इनपुट स्ट्रिंग है 0 के लिए, इट मींस A एंड P जो स्टार्टिंग सिंबल है, अगर इनपुट 0 आया तो फॉर दैट कि नेक्स्ट स्टेट कौन सा रहेगा। सो ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई किया तो थीटा ऑफ A कोमा 0 एंड P कोमा 0। सो देखो यहाँ पे A कोमा 0 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे B में जा रहा है, और P कोमा 0 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे Q में जा रहा है। तो यहाँ पे B में और यहाँ पे Q में, और उस दोनों का कॉम्बिनेशन तो आया B एंड Q। तो यहाँ से AP से हम जाएंगे डायरेक्टली B Q में और वहां पे 0 आएगा। इट मीन्स अगर हम AP स्टेट पे अगर 0 इनपुट आता है तो वो नेक्स्ट स्टेट में जाएगा BQ के अंदर। सेम वे फॉर द इनपुट 1 फॉर द A एंड P वी विल गेट A में, वो A में ही वापिस आ रहा है, और P के लिए वो P में वापिस आ रहा है, तो वो A और P दोनों के लिए सेम में रह रहा है। सो उसके लिए AP के अंदर ही फिर से हम उसको 1 इनपुट देंगे। उसके बाद B एंड Q, नेक्स्ट सिंबल है B और दूसरे में नेक्स्ट सिंबल है Q। सो फॉर दैट द इनपुट सिंबल इज 0 के लिए दोनों कहां पे जा रहे हैं, सो B0 के लिए वो जा रहा है C में और Q0 के लिए वो जा रहा है Q में। सो फाइनल जो ट्रांजिशन फंक्शन मिलेगा वो CQ मिलेगा। सो फॉर दैट द B एंड Q से हम कहां पे जाएंगे, C और Q में, तो वहां पे हमने इनपुट लिख दिया। उसके बाद हम 1 के लिए करेंगे तो वो हमें AR में जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सो BQ का काम यहाँ पे खत्म। ठीक है, अभी नेक्स्ट कौन सा है, CQ आया। तो AP से हम स्टार्ट करते, BQ में गए, BQ से हमने 0 और 1 की पॉसिबिलिटी चेक कर ली, सो वो हमें CQ और AR में लेके आया। अभी नेक्स्ट CQ आया तो हम CQ के लिए दोनों चेक करेंगे फॉर द इनपुट सिंबल 0 एंड इनपुट सिंबल 1। सो फॉर द CQ हम कहां पे जा रहे हैं, CQ के लिए 0 में हम CQ में ही रह रहे हैं और 1 के लिए जा रहे हैं हम CR में। तो हमें नया स्टेट मिल गया CR। तो CQ हमने विजिट कर लिया। उसके बाद कौन सा आ रहा है नेक्स्ट, यहाँ पे रेड मार्क्स में देखो AR आ रहा है, तो AR के लिए 0 एंड 1 चेक करेंगे। तो फॉर द AR 0 BQ में जा रहा है और AR के लिए 1 जा रहा है AP के अंदर, तो AR से हम जाएंगे AP में। तो AR भी हमारा विजिट हो गया। अभी नेक्स्ट कौन सा रहा, लास्ट में CR रहा। तो CR के लिए 0 आ रहा है CQ में, CR के लिए 1 जा रहा है
सीपी में। तो यहाँ से हमें कौन सा नया मिला, सीपी एक नया नोड मिला। तो चलो सीपी का पॉसिबिलिटी चेक करें कि सीपी 0 के लिए कौन सा इनपुट आ रहा है, तो कि CQ, और सीपी के लिए 1 इनपुट जा रहा है सीपी खुद में। तो अभी रेस्ट ऑफ दी कोई नोड बचा, नया नोड अभी लास्ट में कोई भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, वी कैन रिमूव द अनकनेक्टेड स्टेट्स, कि जितने भी अभी रेस्ट ऑफ द स्टेट जितने भी अनकनेक्टेड रहे हैं उसको निकाल दो, जैसे कि बी और पी, ए और क्यू एंड बी एंड आर। तो इन तीनों को हमने निकाल दिया। सो ये हमारा बन गया एल यूनियन L2। इट मीन्स लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का हमने ये यूनियन परफॉर्म कर लिया। अभी बारी किसकी है, तो कि हमें यहाँ पे एक्सेप्टिंग स्टेट दिखाना है। सो फॉर द A1 जो एक्सेप्टिंग स्टेट था वो था A एंड B। इट मीन्स कि फर्स्ट मशीन के लिए दो इनपुट, दो स्टेट ऐसे थी जहां पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी, A एंड B, ये दो स्टेट में। एंड फॉर द सेकंड मशीन जो एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग थी वो कहां पे थी, R के अंदर थी। सो A एंड B एक्सेप्ट फाइनल एक्सेप्टिंग सिंबल है एंड आर भी एक्सेप्टिंग सिंबल है। सो एज पर द थियरम वी स्टेट द अर्लियर दैट द कि विच कंसिस्ट ए और बी और आर विल बी द एक्सेप्टिंग स्टेट इन द रिजल्टिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जहां जहां पे इस फाइनाइट ऑटो में जहां जहां पे ए बी एंड आर ये तीनों आ रहे हैं, वो सारे के सारे स्टेट हम क्या करेंगे, एज अ एक्सेप्टिंग स्टेट दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट नोड हमारा ए है, फर्स्ट नोड एपी में ए आ रहा है तो वो हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट है। दूसरा ए आर में ए आ रहा है, ए आर में ए और आर दोनों आ रहे हैं तो वो भी एक्सेप्टिंग स्टेट है। बी क्यू में बी आ रहा है तो वो भी एक्सेप्टिंग स्टेट है। सी एंड आर में आर आ रहा है तो वो भी एक्सेप्टिंग स्टेट है। सी क्यू में कोई भी ए बी और आर में से नहीं है, सीपी में भी ए बी और आर में से नहीं है तो वो दोनों एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होंगे। तो यूनियन दिखाने के बाद हमें एक्सेप्टिंग स्टेट दिखा दिए। तो यहाँ पे एक्सेप्टिंग स्टेट कितने रहेंगे, एपी, ए आर, बी क्यू एंड सी आर। अभी हम इसका इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे। इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, ए फॉर द A1 A and B एक्सेप्टिंग स्टेट है एंड फॉर द A2 R एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो अभी therefore as per the theorem कि the state which consist A and R and B and R will be the accepting state in the resulting finite automata. It means अगर intersection means एंड ऑपरेशन कि ए एंड आर आ रहा है एंड बी एंड आर आ रहा है तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट रहेंगे। सो वो कहां पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही ऐसा स्टेट है कि जहां पे ए और आर का कॉम्बिनेशन है या तो बी और आर का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे एक ही है ए एंड आर की, जहां पे ए और आर दोनों एक्सेप्टिंग सिंबल थे प्रीवियस मशीन के अंदर। सिंगल सिंगल यहाँ पे नहीं लेने, यहाँ पे दोनों साथ में आने चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हम इंटरसेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। So for that, the AR is the final accepting state for the L1 intersect with the L2. तो ये जो finite automata बन गया वो for the intersection. And the L1 minus L2 it means the A, B and R तीनों है। So theorem state that कि A और B है but should not contain R, with them will accepting the state. It means the L1 minus L2 it means कि जहां पे A एंड B दोनों आ रहे हो बट R कहीं पे भी आना चाहिए नहीं। तो ऐसे सिंबल कितने हैं, तो कि एक है A और P, दूसरा है B एंड Q एंड तीसरा कोई नहीं है क्योंकि A R में R आ रहा है, C R में R आ रहा है। तो जहां पे L1 के जितने भी एक्सेप्टिंग सिंबल है उसी को कंसीडर करना है, रेस्ट ऑफ द थिंग को नहीं। So for the L1 minus L2 the finite automata is here and the accepting state are AP and BQ. So ये बात हो गई L1 minus L2। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करके ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करनी है और आपका आंसर जो है वो गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है फॉर योर अटेंडेंस पर्पस। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा आपको डिजाइन करके दिया गया है, आपको सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री परफॉर्म करना है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।